آج کل 35% بزنسز AI کی مدد سے ہو رہے ہیں اور مزید 42% ٹیکنالوجی کو دریافت کر رہے ہیں۔ AI یا مصنوعی ذہانت اب مستقبل کا خواب نہیں رہی، یہ یہاں پر آ چکی ہے اور دنیا میں چھا چکی ہے اور عالمی معیشت کو نئی شکل دے رہی ہے۔ حقیقت میں AI کی مدد سے 2030 تک عالمی GDP میں 16 خرب ڈالرز کا اضافہ کرنے کی پیشین گوئی کی گئی ہے۔ جی ہاں، 16 خرب ڈالرز۔ یہ ہماری نسل کا یا ہماری جنریشن کا سب سے بڑا موقع ہے اور دنیا کے امیر ترین افراد پہلے ہی AI کا استعمال کر کے مزید دولت کما رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو 15 طریقے دکھائیں گے جن سے لوگ AI کو استعمال کر کے خود کو امیر بنا رہے ہیں۔ یقین مانیں آپ آج کی ویڈیو کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ وہ کون سے ایسے 15 طریقے ہیں۔ آئیں دوستو آپ کو بتاتے ہیں۔ ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ۔ سب سے پہلے مالیاتی صنعت کی بات کرتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بلیک راک 8 خرب ڈالر کے اثاثوں کی نگرانی کرتی ہے۔ ان کی کامیابی کا راز AI ہے۔ ان کا AI پر مبنی پلیٹ فارم ایلڈن 21 خرب ڈالر کے اثاثوں کی نگرانی کرتا ہے، جس میں ایپل، گوگل اور مائکروسافٹ جیسی بڑی کمپنیاں شامل ہیں۔ AI نے تجارت اور سرمایہ کاری کی صنعت میں انقلاب برپا کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ سرمایہ کاروں کو پیچیدہ ڈیٹا سیٹس کو تجزیہ کرنے کی صلاحیت دیتا ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ یہ رپورٹس، نیوز اور ڈیٹا سیٹس کو ریئل ٹائم میں انتہائی درستگی کے ساتھ انالیسس کرتا ہے۔ AI کی مدد سے سرمایہ کاروں کو خطرات کا اندازہ لگانے، بہتر فیصلے کرنے اور اپنے پورٹ فولیو کو مؤثر طریقے سے منظم کرنے کا ہنر سکھاتا ہے۔ آٹونومس وہیکلز۔ ہم سب کو ٹیسلا کی خود چلنے والی گاڑیوں کے بارے میں معلوم ہے، لیکن اب دیگر کمپنیاں جیسے بیڈو، جنرل موٹرز، انویڈیا، فورڈ اور گوگل بھی آٹونومس وہیکلز تیار کر رہی ہیں۔ AI ان گاڑیوں کے اندر استعمال ہوتا ہے تاکہ یہ دنیا میں خود بخود بغیر ڈرائیور کے اور بڑے محفوظ طریقے سے چل سکیں۔ برین ایکٹیویٹی انٹرپریٹیشن۔ AI اب دماغی سرگرمیوں کو بھی سمجھ سکتی ہے۔ دماغ کی پیچیدگی کو سمجھنے میں AI کی مدد سے نیا انقلاب آ رہا ہے۔ دماغی سرگرمیوں کو سمجھنے اور پروسیس کرنے میں AI نے نئے امکانات پیدا کر دیے ہیں اور مختلف بیماریوں جیسے الزائمر کے علاج میں بھی AI بہت زیادہ مدد دے رہی ہے۔ کنورسیشنل ALS۔ بات چیت کرنے والا AI وہ جدید ترین ٹیکنالوجی ہے جو ہر دن تیزی سے بہتر ہو رہی ہے۔ آپ سب نے سیری، الیکسا، گوگل اسسٹنٹ اور کورٹانا جیسے ورچوئل اسسٹنٹس کے بارے میں سنا ہوگا۔ یہ چیٹ بوٹس اب جذبات اور ارادوں کو سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، جو کہ ایک حیرت انگیز بات ہے۔ یہ AI نظام 24/7 کسٹمر سپورٹ فراہم کرنے، فروخت بڑھانے یا آپ کے اسمارٹ ڈیوائسز کو آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ AI کریٹیوٹی۔ اب بات کرتے ہیں تخلیقی صلاحیت کی۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کی تخلیقی صلاحیت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، لیکن AI اس نظریے کو بھی غلط ثابت کر چکی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ تصویر جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، جس نے مقابلے میں $300 کا انعام جیتا، مکمل طور پر AI سے بنائی گئی تھی۔ اوپن AI کے ڈالی جیسے پلیٹ فارم کی مدد سے آپ چند الفاظ سے شاندار آرٹ تخلیق کر سکتے ہیں، اور یہ صرف تصاویر تک محدود نہیں ہے۔ AI موسیقی بھی تخلیق کر سکتا ہے، چاہے وہ پاپ میوزک ہو یا کلاسیکل، اور یہاں تک کہ ہمارے مستقبل کے عمارتوں اور شہروں کے ڈیزائنز کو بھی نیا زاویہ دے سکتا ہے۔ گوگل کا AI ماڈل امیجن کہا جاتا ہے کہ یہ ڈالی سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ تو اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی تخلیقی صلاحیت ناقابل تبدیل ہے تو آپ کو دوبارہ سوچنا پڑے گا۔ سائبر سیکیورٹی۔ ڈیجیٹل دنیا میں ہر چیز کا خطرہ بڑھ رہا ہے، لیکن AI سائبر حملوں کا مقابلہ کرنے میں زیادہ مؤثر ثابت ہو رہی ہے۔ AI کی بنیاد پر سائبر سیکیورٹی مصنوعات کی مارکیٹ 2030 تک $133.8 ارب تک پہنچنے کا امکان ہے۔ جی میل جیسی کمپنیاں بھی AI کا استعمال کرتی ہیں تاکہ اسپیم کو فلٹر کیا جا سکے اور آن لائن دھوکہ دہی کو روکا جا سکے۔
फेशियल रिकग्निशन की टेक्नोलॉजी रोज बरोज आम हो रही है। आप अपने फोन को फेशियल रिकग्निशन से खोलने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ कंपनियां जैसे मीटा और गूगल आपकी तस्वीर में चेहरों को ग्रुप करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही हैं। ये टेक्नोलॉजी नाज़रीन के जज्बाती रद्द-ए-अमल का तज्जिया भी कर सकती है, जो कारोबार के लिए कीमती साबित हो रही है, लेकिन इसके इस्तेमाल के बारे में कुछ इखलाकी सवालात भी उठ रहे हैं। हेल्थ केयर का शोबा भी एआई से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। 2021 के बाद से सेहत की देखभाल में एआई स्टार्टअप्स में 13 अरब डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी की जा चुकी है। एआई डॉक्टर्स को मजीद दुरुस्त तरीके से बीमारियों की तशखीस और इलाज फराहम करने में मदद दे रहा है। कैंसर की शनाख्त और इलाज में एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये एक पेचीदा अमल है। एआई के जरिए अद्वियात की दरियाफ्त में भी मदद मिल रही है। मिसाल के तौर पर एटम वाइस ने फार्मास्यूटिकल कंपनी सैनोफी के साथ एक मुआहदा किया है, जिसकी मालियत 20 मिलियन डॉलर से शुरू होकर 1 अरब डॉलर तक बढ़ सकती है। IoT डिवाइसेज या इंटरनेट ऑफ थिंग्स मार्केट 2030 तक 1.5 खरब डॉलर तक पहुंच सकती है। बड़ी कंपनियां जैसे Amazon, माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल इस मैदान में AI का भरपूर फायदा उठा रही हैं। स्मार्ट डिवाइसेज जैसे फिटनेस ट्रैकर्स, स्मार्ट वॉचेस और यहां तक के ऑटोनोमस व्हीकल्स AI के जरिए कंट्रोल होती हैं। AI IoT के साथ मिलकर दुनिया को मजीद इंटेलिजेंट बना रही है और ये शोबे जैसे सेहत की देखभाल, ज़राअत और सप्लाई चेन्स को भी बेहतर बना रही हैं। लीगल ऑटोमेशन एआई पहले ही कानूनी शोबे में तब्दीली ला रही है। कंपनियों जैसे JP मॉर्गन एआई का इस्तेमाल करके अपने कानूनी दस्तावेजात से अहम मालूमात निकाल रही हैं। एआई वसी कानूनी तहकीक को तेज और ज्यादा दुरुस्त बना रही है और गलतियों के इम्कानात को कम कर रही है। ये कानूनी पेशगोइयां करने और मुआहदों को खुदकार बनाने में भी मदद कर रही है। एआई मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में भी इनकलाब ला रहा है। एंड्रयू गूगल ब्रेन के फाउंडर कहते हैं कि एआई मैन्युफैक्चरिंग में मेयार की निगरानी, मवाद के ज़िया में कमी, पैदावार के अमल की इस्लाह और पेशगोई करने में मदद करेगा और ये बहुत अहम है क्योंकि डाउन टाइम कारोबारों को सालाना अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचता है और इस मामले में एआई हमारी बहुत ज्यादा मदद कर रहा है। यानी कि हमें वो स्ट्रेटजीज बनाने में हमारी हेल्प कर रहा है कि हम डाउन टाइम में अपने कारोबार को कैसे सर्वाइवल मोड में लेकर आएं और अपने कारोबार को नुकसान से बचाएं। रिकमेंडेशन का सिस्टम हर जगह पर मौजूद है, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, अमेज़न हो, स्पॉटिफाई हो या टिंडर हो। एआई आपको हर दिन जो रिकमेंडेशन दिखाता है वो इसके पीछे है। आपके माजी के बर्ताव, जो आपने देखा, खरीदा, पसंद किया या तलाश किया को एनालिसिस करके एआई आपके लिए एक ज़ाती तजुर्बा तख्लीक करता है। ये निज़ाम आपको इससे भी बेहतर तौर पर समझता है जितना आप खुद अपने आप को समझते हैं। यानी कि एआई आपके रिसर्च करने के तरीका को अपने अंदर सेव कर लेता है और उसके बाद जब आप कुछ रिसर्च करना चाहते हैं या आप अपनी उस ऐप को ओपन करते हैं तो एआई रिकमेंडेशन के सिस्टम के ज़रिए ऑटोमेटिकली आपकी पसंद की चीज़ें आपके सामने लेकर आ जाता है, जिससे आपको अपनी चीज़ें तलाश करने में बहुत ही आसानी होती है। तो दोस्तों, ये इस वक्त तक की एआई की सबसे हैरान कुन बात है, जो आपकी रिसर्च को अपने अंदर सेव कर लेता है और आपको वक्त बा वक्त वही चीज़ें दोबारा दिखाता है या उससे रिलेटेड चीज़ें आपको दिखाता जाता है, ताकि आपको अपनी रिसर्च करने में या अपनी सिलेक्शन को या आपकी सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स को तलाश करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो। रोबोटिक्स एआई और रोबोटिक्स का आपस में गहरा ताल्लुक है। एआई के बगैर जदीद रोबोटिक टेक्नोलॉजी मुमकिन नहीं होती। मिसाल के तौर पर सोफिया एक ऐसा रोबोट है जो चेहरों को पहचान सकता है और जज्बात को भी समझ सकता है और यहाँ तक कि आर्ट भी तख्लीक करता है। लेकिन रोबोट सिर्फ आर्ट तक महदूद नहीं है। बोस्टन डायनामिक्स के स्पॉट नामी रोबोट ने तेज दौड़ने और रुकावटों को अबूर करने की सलाहियत हासिल की है। एआई से चलने वाले रोबोट सेहत की देखभाल, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे शोबों में भी काम आ रहे हैं।
स्पेस एक्सप्लोरेशन। आखिरकार AI खलाई तहकीक में भी काम आ रही है। नासा, इंटेल, IBM और गूगल के साथ मिलकर खला में मुख्तलिफ मसाइल का हल तलाश कर रही है। AI ने नए सैयारों की शनाख्त, सूरज की शुआओं की पेशगोई और स्पेस वेस्ट से बचने के लिए खुदकार सिस्टम्स तैयार किए हैं। टेक्स्ट जनरेशन एंड मैनिपुलेशन। अब बात करते हैं तहरीरी मवाद की तख्लीक और तब्दीली की। AI ने ज़बान की प्रोसेसिंग में ज़बरदस्त तरक्की की है। आजकल के सबसे मुतासिरकिन मॉडल्स में से एक GPT-4 है, जो इंसानों की तरह तहरीरी मवाद को जनरेट करता है, मज़ामीन लिखता है, ख़बरें तैयार करता है, स्क्रिप्ट्स बनाता है और आम गपशप भी करता है, और इसके बाद मेडिकल की इंफॉर्मेशंस भी देता है। यानी कि बेशुमार किस्म का तहरीरी मवाद आपको फराहम करता है। GPT-4 इतना जदीद है कि उसने कुछ लोगों को बशमूल गूगल के साबिक इंजीनियर्स को इस बात का कायल कर लिया है कि शायद GPT-4 कोई सुपर ब्रेन है। OpenAI GPT-4 में आप काम करके अपने लिए बहुत सारे मौके पैदा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्लॉगर हैं तो आप इसमें से अपने ब्लॉग्स के लिए मवाद तैयार कर सकते हैं। आप रिसर्च करते हैं तो अपने थीसिस की तैयारी के लिए इसमें से रिसर्च करने में मदद हासिल कर सकते हैं। इवन दैट कि कुछ भी आप इसमें जनरेट कर सकते हैं और लेटेस्ट इंफॉर्मेशंस भी इसमें से हासिल कर सकते हैं। जो कोई भी टॉपिक हो, किसी भी नीश पर आप इसमें अपने लिए आर्टिकल बना सकते हैं और उनकी मदद से आप ठीक ठाक पैसा भी कमा सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि OpenAI ChatGPT ने लिखने के तरीके को ही बदल कर रख दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि AI हर सनत में तब्दीली ला रही है, सेहत की देखभाल से लेकर खलाई तहकीक तक, और ये उन लोगों के लिए बेशुमार मौके पैदा कर रही है जो इसे अपनाते हैं। दुनिया के अमीर तरीन अफराद पहले ही AI का इस्तेमाल करके अपने रास्ते को आगे बढ़ा रहे हैं और अब आप जानते हैं कि वो कैसे कर रहे हैं। लिहाजा इस वक्त आने वाले दिनों में AI के बारे में जो प्रिडिक्शन की जा रही है वो ये है, AI से मुंसलिक जितने भी लोग होंगे वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे और IT की फील्ड में ख़ास तौर पर AI से रिलेटेड बहुत सारी नई जॉब्स क्रिएट होने वाली हैं। और अगर आने वाले दिनों में कोई शख्स जो IT के शोबे से मुंसलिक है, अगर वो AI को इग्नोर करता है तो वो अपनी इस फील्ड में कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुस्तकबिल के अरब पतियों के शानदार कम्युनिटी का हिस्सा बनें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।